آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، وہ دین متین اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی مذہب کا حقانیت اس وقت پتہ چلے گا جبکہ بانی اسلام کے حقائق آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بانی اسلام یعنی جس مذہب کو آپ مانتے ہیں، اور وہ مبلغ اسلام جو ہے جو مذہب لے کر کے آیا ہے، جب تک ان کے اخلاق آپ نہ جانے، جب تک ان کے کردار کو آپ نہ جانے، جب تک آپ ان کے عادت و اعتبار کو نہ جانے، تب تک ان کی مذہب کی حقانیت کو پہچان نہیں سکتے ہیں، ان کے مذہب کی آپ سچائی جان نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرات ہم اور کے درمیان حضور ہو رہی ہے، آئیے کھڑے ہو جائیے، حضور تشریف لائے۔ نعرہ رسالت، خانقاہ حیدریہ، فیضان حضور نبیل ملت، حضور بدر الشریعہ، سرکار حسن پورہ شریف، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعظیم اہل بیت مصطفیٰ، تعظیم اہل بیت مصطفیٰ، آل رسول، اولاد رسول، فاطمہ کے پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ کی شان رکھتے ہیں، ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں دونوں جہاں میں۔ آپ لوگ خاموش رہیں۔ ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں، نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، کیونکہ وہ یاد میں خدا و رسول رکھتے ہیں، یاد میں خدا و رسول رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، آج یہ ہم اپنے موضوع کے طرف پلٹتے ہیں۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ مذہب اسلام کے متعلق ہے، وہ مذہب اسلام کے تعلق سے ہے۔ حضرات آج انسانی بھیڑ بھاڑ میں بے شمار عقائد و نظریات کے حامل افراد سامنے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کی روشنی میں اگر ہم آپ غور کریں تو کیا یہ تمام خیالات مکتی دلا کر شانتی دلا سکتا ہے کہ نہیں؟ آج ہم ہر انسان اپنے طور پر اپنے عقائد کی تشہیر، اپنے مذہب کی ترویج میں مگن ہے، لیکن حقیقت کی روشنی میں اگر آپ سوال کریں کیا یہ تمام منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے کہ نہیں؟ یہ تمام راستے ہمیں مکتی دلا کر جنت الفردوس تک پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ حقیقت کی روشنی میں اتر کر اگر آپ سوال کریں تو آپ کو جواب سوائے نفی کے کچھ بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آج جو بھانت کے دھرم اور قسم کے مذاہب نظر آ رہے ہیں، اس کی تعمیر و توسیع کے پیچھے انسانی دماغ، انسانی خواہشات، انسانی تفکرات، انسانی تصورات، انسانی پلاننگ کام کر رہی ہے۔ چاہے کوئی بھی مذہب ہو وہ آپ کو مکتی دلا کر جنت الفردوس کی وادیوں تک پہنچا نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی مذہب ہو آپ کو صراط مستقیم پر لا کر کے جنت الفردوس کی وادیوں تک نہیں پہنچا سکتا سوائے مذہب اسلام کے، اس لیے کہ اے میرے عزیزوں، مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کی در سے قبولیت کی سند حاصل ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہی وہ مذہب ہے جس کو میرے نبی لے کر کے آئے۔ میرے نبی کا کردار دیکھو، میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی کی عادت دیکھو، میرے نبی کے اقوال دیکھو، میرے نبی کے افعال دیکھو۔ آپ جدھر میرے نبی کو دیکھیں گے ہر کردار اعلیٰ نظر آئے گا، ہر کردار افضل نظر آئے گا، اس لیے کہ کوئی میرے نبی کے گفتار کو سن کر کے ایمان لے آ رہے ہیں، کوئی میرے نبی کے کردار کو دیکھ کر ایمان لے آ رہے ہیں، کوئی میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے ایمان لے آ رہے ہیں۔ تو سنو، جس نے اسلام کو لے آیا اس کا جب اتنا بڑا مرتبہ ہے تو پھر اسلام کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضرات محترم،
हजरत मोहतरम, आज हम उसी मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब को रब की बारगाह से कबूलियत की सनद हासिल है। हजरत इस्लाम ये ऐसा मजहब है कि अगर आप हकीकत की रोशनी में उतर करके अगर आप जवाब ढूंढे तो हर जवाब आपको मिलेगा। इसलिए कि मजहब इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है कि जो मजहब इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है कि जिसने भी इस मजहब से लग गया है, जिसने भी इस मजहब से आ गया है, वो कामयाबी की दहलीज तक पहुंचता चले गया है। और मैं आपको तारीख सुनाता हूँ, जब इसी मजहब इस्लाम के दामन को हजरत सिद्दीक़ अकबर पकड़े तो सदाकत के अलम बरदार बन करके चमके। इसी इस्लाम के दामन को जब हजरत उमर फारूक ने पकड़ा तो वो अदालत के अलम बरदार बन करके चमके। इसी इस्लाम के दामन को जब हजरत उस्मान गनी ने इस पकड़ा तो वो सखावत के शहसवार बन करके चमके। इसी इस्लाम के दामन को जब हजरत मौला अली ने पकड़ा तो शुजाअत के शहसवार बन करके चमके। अलगर्ज आचा के हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के दामन को पकड़े हैं तो वही के राजा बन करके चमके। जब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम के दामन को पकड़े हैं तो वो वलियों के सरदार बन करके चमके हैं। अलगर्ज मेरे अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जब इस्लाम के दामन को पकड़े हैं तो मुफक्किर बन करके चमके हैं, मुहद्दिस बन करके चमके हैं, इमाम बन करके चमके हैं। जब मुफ्ती आजम हिंद ने इस्लाम के दामन को पकड़े हैं तो वो मुफ्ती कुज़ात बन करके चमके हैं। अलगर्ज जिसने भी इस्लाम के दामन को पकड़ा है वो दुनिया में चमकते दमकते रहे हैं। इसीलिए तो मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पे भी बरसा दे। मजहब इस्लाम ही ऐसा मजहब है कि जिसने भी दिलो जान मजहब इस्लाम पे कुर्बान कर दिया, जिसने भी अपना धन दौलत मजहब इस्लाम पे कुर्बान कर दिया, कसम खुदा की वो दुनिया में भी कामयाब रहा है और आखिरत में भी कामयाब रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान से साबित है कि मजहब इस्लाम से कोई अच्छा मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम से ज्यादा अच्छा कोई भी मजहब नहीं है। हर अच्छा मजहब अगर है, अगर लोगों के दरमियान कोई तसव्वुरात हो, ख्यालात हो, तफक्कुरात हो, चाहे जिस दुनिया में हो, अगर कोई अता करता है तो वो मजहब इस्लाम हो, चाहे दुनियावी हिसाब से हो या आखिरत के हिसाब से हो, वो प्यारा मजहब, वो अच्छा मजहब, वो पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। लेकिन आप तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज मजहब इस्लाम का मानने वाला, आज मजहब इस्लाम के तरीके पे जिंदगी गुजारने वाला हर मोड़ में नाकाम है, हर मोड़ में परेशान है, हर मोड़ में नाकामी है। आखिर वजह क्या है कि आज हम परेशान हैं? आज मजहब इस्लाम का चाहने वाला दुश्वारी में घिरा हुआ है, परेशानी में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है। आज किसी मुसलमान को, किसी मजहब के चाहने वाले को किसी भी मामले में मार दिया जाता है, कभी 370 का धारा हटा करके मुसलमानों को परेशान किया जाता है, कभी NRC का कानून ला करके इसी मजहब इस्लाम के चाहने वाले को परेशान किया जाता है, कभी ना जाने किस किस कानून ला करके मजहब इस्लाम के चाहने वाले को परेशान किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अरे इस्लाम तो वो है जिसने भी धन दौलत अपनी जान कुर्बान की है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम परेशान हैं, आखिर वजह क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम आज वो तरीका छोड़ चुके हैं जिस तरीके पे चलने की तलकीन ख्वाजा गरीब नवाज ने की थी, वो तरीका हम छोड़ चुके हैं जिसकी तलकीन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें और आपको चलने की तलकीन दी थी, वो तरीका छोड़ चुके हैं जिसकी तलकीन शमे बज़्मे हिदायत
मुस्तफा जाने रहमत ने की थी वो तरीका छोड़ चुके हैं। जो तरीका कुरान और हदीस ने लेकर के आया मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए लोगों, आप हैरान हो, परेशान हो, दुश्वारी में घिरे हुए हो, अगर आज भी मजहब इस्लाम की हकीकत को पहचान कर उसमें आ गए, फराइज पर अमल करना शुरू कर दिए, वाजिबात पर अमल करना शुरू कर दिए, सुन्नत पर चलना शुरू कर दिए, तो फिर कोई वजह नहीं है। जमाना हमारी होगी, लोग हमारे होंगे, बात आपकी होगी, सारे लोग मत मानते और चलते रहेंगे और कामयाबी तेरी कदम चूमेगी। इसलिए कि सुनो, शायर कहता है कामयाबी तुझको ढूंढेगी। ए मुसलमान याद रख, तूने अपना लिया सुन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तूने अपना लिया सुन्नत रसूलुल्लाह की, ए लोगों कोई वजह नहीं है। अगर हम परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, अगर दुश्वारी को खत्म करना चाहते हैं, इन हैरानियों को खत्म करना चाहते हैं, तो मजहब इस्लाम की हकीकत को पहचानो, मजहब इस्लाम की सच्चाई को पहचानो, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं। क्या वजह है कि आज हम हर मोड़ में नाकाम है, हर मोड़ में परेशान है? उसकी वजह यही है, इस्लाम के अलिफ से तो वाकिफ नहीं है, सीन से वाकिफ नहीं है, नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों पर उंगली उठाने की हैसियत है, लोगों पर तोहमत लगाने की हैसियत है। लेकिन याद रखना, समझने की जरूरत है। आज मैं एक आपको पॉइंट देता हूँ, ए लोगों, लोग वही बोलता है जो होता है। अगर आप अच्छे रहोगे तो आपकी जबान से अच्छी बात निकलेगी, अगर आप बुरे रहोगे आपकी जबान से बुरी बात निकलेगी। यही वजह है कि आज गाँव में अच्छे लोगों को बुरा कहा जाता है और बुरा ही बुरा कहता है। अच्छे लोग बुरा नहीं कह सकते हैं, तो अपने गिरेबान में झांको, अपने किरदार को देखो, अपने अखलाक को देखो कि मैं अगर अच्छा बोल रहा हूँ तो मैं भी अच्छा हूँ, अगर मैं दूसरे के बारे में गलत ख्याल कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। इसलिए कि सुनो, इस्लाम तो बुरे को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है और अच्छाई को बयान करने का। पर्दे में रखो, अच्छाई को बयान करो, ताकि लोग इस अच्छाई को देख करके इस्लाम के तरफ आए, इस्लाम की हकीकत को पहचाने, इस्लाम की सदाकत को देखे, ताकि इससे लोगों के दरमियान उजागर हो जाए कि अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम के मुबल्लिग हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका किरदार क्या था, उनका अखलाक क्या था? और एक ईसाई से पूछते हैं, ए ईसाई सुनो, ए कैसे अपने मजहब को छोड़कर मेरे नबी का दीवाना हो गया? तू कैसे अपने मजहब को ईसाइयत से हट करके मेरे नबी का दीवाना हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया? तो वो ईसाई क्या जवाब देता है, खूबसूरत सुनिए। वो ईसाई कहता है, सुनो, वो वाकया ये है कि मदीना में एक लड़का जो जिंदगी काट रहा है, गरीबी की जिंदगी है, मुफलिसी की जिंदगी है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। एक दफा उनके अम्मी के पास जो कपड़ा रहता है वो भी कपड़ा फट चुका रहता है। वो लड़का अपने अम्मी को कहता है, ए मेरी अम्मी, हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे पास रुपए नहीं कि मैं अपने खरीद करके तुझे पहना सकूं, लेकिन पर्दा करना जरूरी है, ये कपड़ा भी फट चुका है। मदीना में मेरा चाचा, वो तो अमीर है, पैसे वाले हैं, जाते हैं उनसे मांगते हैं, वो मुझे दे देगा। वो औरत क्या जवाब देती है, सुनिए। वो औरत कहती है, ए मेरा बच्चा सुनो, तेरा चाचा अमीर तो जरूर है लेकिन जालिम है, जाबिर है। अगर तुम जाओगे तुझे मारेगा, तुझे पीटेगा, तुझे भगा देगा, तुम मत जाओ। लेकिन बेटा बेटा होता है, माँ का ममता देखा नहीं जाता है। बेटा कहता है, ए मेरी अम्मी जान, एक बार जा करके तो देखूं। जब ये बार बार कहता है, उनकी अम्मी इजाजत दे देती है, ठीक है तुम जाओ, तुम जो करना चाहते हो करो। वो बच्चा जाता है, चाचा का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही चाचा दरवाजा खोलता है, कहता है, ए मेरा चाचा, आप जानते हैं मैं गरीब हूँ, आप जानते हैं मैं मुफलिस हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी किसी तरह जिंदगी काट लेता हूँ। लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरी अम्मी जो कपड़ा पहनती थी, आज वो कपड़ा फट चुका है। आप भी जानते हैं कि पर्दा करना जरूरी है। आप एक कपड़ा दे दे या कुछ पैसे दे दे, मैं मदीना के बाजार में जा करके कपड़े खरीद करके ले आऊंगा। लेकिन वो जालिम चाचा
चाचा, वो जाबिर चाचा अपने भतीजे को अपने दर से मार के भगा देता है। वो बच्चा जब जाता है रोते हुए जा रहा है, गिड़गिड़ाते हुए जा रहा है। मदीने के लोगों ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, सवाल करता है, ए बच्चा तू क्यों रो रहा है, ए बच्चा तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है? वो बच्चा जवाब देता है, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे अम्मी के पास कपड़ा नहीं है, मेरा चाचा अमीर है, मैं उनसे मांगने के लिए गया लेकिन मेरा चाचा दिया नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। मेरे नबी का किरदार सुनो, मेरे नबी का अखलाक सुनो। जब बच्चा इतना जवाब देता है, मदीने के लोग कहते हैं, सुनो सुनो, फला मदीने की फला जगह पे चले जाओ, कमली वाले आका नबी के अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, रहते हैं, तुम जाओ वहां पे अपना दुख सुनाओ, जरूर तेरा मदद करेगा। वो बच्चा जब घर जाता है, घर जाने के बाद उनकी अम्मी कहती है, बेटा क्या हाल हुआ है, क्या जवाब लेकर के आए हो? बेटा जवाब देता है, रोते गिड़गिड़ाते जवाब देता है, अम्मी मैं तो गया था ठीक, लेकिन मेरा चाचा मुझे कुछ भी जवाब न दिया और मुझे डांट कर मार करके अपने दर से भगा दिया। उनकी अम्मी जवाब देती है, मैं तो तुझसे कहा था कि तुम मत जाओ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी बात नहीं मानी। वो बच्चा जवाब देता है, ए मेरी अम्मी, अगरचे चाचा के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक पता जरूर मिला है कि मदीने में एक ऐसा शख्स है जो ना खा करके दूसरों को खिलाता है, जो ना पहन करके दूसरे को पहनाता है, जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। मैं उनके पास जाता हूँ, जैसे ही इतना वो औरत सुनती है, वो औरत कहती है, ना ना मत जाओ, वो बहुत बड़ा जादूगर है, अगर तुम चले गए तो तुम उसी का हो जाओगे, उसी के मानने वाले हो जाओगे। बच्चा का खूबसूरत जवाब सुनिए, वो बच्चा कहता है, ना अम्मी मैं जरूर जाऊंगा, और जाने के बाद पहले मैं शर्त रखूंगा कि आप हमारे धर्म को ना बदले, आप अपने मजहब में मुझको ना करे, तभी मैं आपसे सवाल करूंगा। कहा ठीक है जाओ। वो बच्चा जाता है, जाने के बाद मेरे नबी की दरबार जैसे ही जाता है, मेरे नबी की निगाह उस बच्चे की तरफ जैसे ही पड़ती है, उस बच्चे को आवाज देते हैं, बच्चा आता है। बच्चा सवाल जवाब करने से पहले वो कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मेरा एक शर्त है, तभी मैं आपसे बात करूंगा। वो शर्त ये है कि आप पहले मुझसे वादा करें कि मेरा धर्म आप ना बदलेंगे, आप मुझे आप अपना दीवाना ना बनाएंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ठीक है मैं इस वादा पे मैं पक्का हूँ, तुम्हारा धर्म नहीं बदलूंगा। हजरत जैसे ही इतना जवाब देते हैं, वो लड़का सुनाता है कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, लानत यहाँ तक आ गई है कि मेरी अम्मी को कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, लेकिन किसी के जरिए से मुझे पता मिला है कि आप खाने के लिए दाना भी देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा भी देते हैं। आज मेरे पास कपड़ा नहीं है। इतना जैसे ही मेरे नबी सुनते हैं, सुनने के बाद मेरे नबी इरशाद करते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ओढ़ने के लिए जो काली कमली चादर है ये ले लो, ये चादर लेकर के चले जाओ। अब बच्चा वो चादर लेकर के मुस्कुराता हुआ जाता है। जैसे ही अम्मी के पास जाता है, जाने के बाद उनकी अम्मी पूछती है, ए मेरा बच्चा, क्या तेरे धर्म को उसने बदल लिया है? कहा ना ना, मेरा धर्म नहीं बदला, मैंने जो वादा किया था उसी वादा पे वो अटल रहा। जैसे ही ये औरत सुनती है, वो औरत कहती है, ए मेरा बेटा, तब तो जादू चल गया है, चलो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास। वो बच्चा भी जाता है, वो औरत भी जाती है, और जाने के बाद मेरे नबी के हाथ में हाथ दे करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो, मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो, कि जिसने मेरे नबी के अखलाक को देखा, जिसने मेरे नबी के किरदार को देखा, जो मुड़े हुए थे, जो दुश्मन थे, जो बागी थे, वो मेरे नबी का होकर के दीवाना बन गए हैं। ईसाई कहता है, मैं यही वाकया जब पढ़ रहा था, मेरी निगाह से गुजर रही थी, तो इसी वाकया को पढ़ते पढ़ते मेरा दिल इतना नरम हो गया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का पता ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते मदीने की गली का चक्कर लगाता रहा। आखिरकार मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पा करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। वो ईसाई जवाब देता है,
وہ عیسائی جواب دیتا ہے کہ میں نے اس نبی کے یہ اخلاق دیکھ کر کے، یہ کردار پڑھ کر کے میں اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو حضرات، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کے گفتار افعال اگر ہم ملاحظہ کریں تو انشاءاللہ ہم اس مذہب کے چاہنے والے ہیں، ہر موڑ میں ہم کامیاب رہیں گے، کامیابی تجھ کو ڈھونڈے گی۔ اے مسلمان یاد رکھ، اگر تو نے اپنا لیا سنت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ مدینے میں بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں۔ بھائی کچھ ماحول بنائیے۔